تو پھر انشاءاللہ یہ جانور، یہ قربانی جہنم کے مقابلے میں آڑ بن جائے گی، روک بن جائے گی۔ ایک اور جگہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیاری بیٹی خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ، اپنی قربانی کے پاس موجود رہو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرے گا تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جانور کا قطرہ گرنا ہے خون کا اور ہمارے گناہ معاف ہو جانے انشاءاللہ۔ ایک اور حدیث سنیے، پیارے آقا علیہ السلام فرماتے جس شخص میں قربانی کرنے کی وسعت ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اب اس میں سمجھایا گیا کہ اگر ہمارے پاس کیپیبلٹی ہے، ہم اس قابل ہیں، ہمارے پاس اتنی وسعت ہے کہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں قربانی کو، اور جو شریعت نے جو اس کا نصاب رکھا ہے اگر ہم پورا کر سکتے ہیں تو پھر ہمیں قربانی ضرور کرنی چاہیے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ آپ یقین کریں کہ عید کے دن، یعنی یہ جو عید کے ایام ہوتے ہیں نا، اس میں اللہ کی بارگاہ میں خون بہانے سے افضل کوئی عمل نہیں ہوتا۔ تو جہاں فرض نمازیں پڑھنی اور اگر قربانی واجب ہے تو ضرور کیجئے۔ اچھا، یہ آج کل بڑی عجیب عجیب لاجکس نکالنے والے بتانے والے بتا رہے ہوتے ہیں کہ جناب قربانی اتنی ساری ہوتی ہے، اس کی بجائے کسی غریب کا بھلا کر دیا جائے۔ ان کو شاید پتہ ہی نہیں ہے کہ قربانی کی وجہ سے غریبوں کا کتنا بڑا بھلا ہوتا ہے۔ ویسے تو سوشل میڈیا پہ ہمارے بڑے تفصیلی کلپس موجود ہیں۔ پہلی بات تو ایک بات سمجھ لیں، میں اور آپ کوئی بھی نیکی کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اگر میرے رب کی رضا ان دنوں میں قربانی میں ہے تو لبیک اللہم لبیک، میرے رب کی رضا ہے میں قربانی کروں گا۔ میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں سنوں گا کہ اس کے بدلے کچھ اور کر لو، اس کے بدلے کچھ اور کر لو۔ اور آپ غور کر لیں، ہر سال کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے جب حج پہ لوگ جاتے ہیں کہ کروڑوں روپے خرچ کر کے وہاں کیوں جا رہے ہیں، کسی غریب کا بھلا کر دیں۔ اچھا جناب، یہ کروڑوں روپے کی قربانی ہو رہی ہے، کسی غریب کا بھلا کر دیں۔ 12 ربیع الاول کو اگر کوئی لنگر کرتا ہے، نیاز کرتا ہے، خوشی میں لائٹیں لگاتا ہے تو کسی غریب کا بھلا، کوئی نہ کوئی لاجک لے کر آتے ہیں۔ یہ ساری لاجکس جو ہیں، آپ ذرا غور کریں اس کے پیچھے معاملہ کیا ہے۔ کبھی بھی آپ کو یہ سنائی دیتا ہے کہ جناب اتنا مہنگا موبائل فون لینے کی کیا ضرورت ہے، کسی غریب کا بھلا کر دیں؟ اتنی مہنگی واچ آئی ہے اور جناب اتنی مہنگی گھڑیاں پہننے کی ضرورت کیا ہے، کسی غریب کا بھلا کر دیں؟ برانڈڈ کپڑے پہننے کی ضرورت کیا ہے، کسی غریب کا بھلا کر دیں؟ جناب نیو ایئر نائٹ میں اتنی آتش بازی کرنے کی کیا ضرورت ہے، کسی غریب کا بھلا کر دیں؟ اپنے بچوں کی شادی میں اتنے قسم کے فنکشن کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں، آپ کہیں نہیں سنیں گے۔ سارے غریب یاد آئیں گے کہ جب اللہ کی عبادت کی طرف مسلمان رجوع کرتے ہیں، جب ان کا شوق بڑھتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں قربانی پیش کرے، خرچ کرے، اپنی جان کی قربانی پیش کرے، وقت دے، تو دیر از سم تھنگ رانگ۔ اس باٹم ان ہارٹ میں کچھ گڑبڑ ہے، سمجھیے بات کو۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، جس کو بہت زیادہ اس بات کی فکر ہے کہ غریبوں کا بھلا ہو جائے، یہ قربانی سبحان اللہ، یہ ایک ایسا شاندار فریضہ ہے اور ایسی خوبصورت یوں سمجھے کہ تہوار ہے، اسلامی تہوار ہے کہ جس کی برکت سے لاکھوں نہیں کروڑوں غریبوں کا بھلا ہوتا ہے فرام دا ڈے ون۔ اچھا، صرف پاکستان کی مثال لے لیں، ویسے ہمارے جتنے یہ جو تیسری دنیا کے بڑے صغیر کے ملک کہلاتے ہیں، جب بہت قربانی ہوتی ہے، پاکستان ہو گیا، ہندوستان ہو گیا، بنگلہ دیش، جہاں بھی غریب ممالک ہیں، مجھے بتائیے قربانی کے جانور آتے کہاں سے؟ 90% جانور وہ لوگ لے کر آتے ہیں جو اپنے گھروں میں، اپنے گاؤں گوٹھوں میں ان جانور کو پالتے ہیں، غریب لوگ ہوتے ہیں اور پورا سال پالتے ہیں تاکہ قربانی کے دنوں میں بیچیں گے تو اس سے ہمیں پیسے ملیں گے۔ تو ان لاکھوں کروڑوں غریبوں کا بھلا ہوتا ہے جب قربانی ہوتی ہے۔ اچھا، بزنس کا ماڈیول کیا ہے؟ واٹ از دا وے ٹو بوسٹ یور بزنس اور یور اکانومی؟ اس کا طریقہ یہ کہ ایک بندے کی جیب سے پیسہ نکلے اور وہ مختلف لوگوں کی جیبوں میں چلا جائے، امیر کی جیب سے پیسہ نکلے، غریب کی جیب میں چلا جائے۔ تو اب وہ غربا، وہ محنت مزدوری کرنے والے گاؤں گوٹ کے ولیجرز، وہ گاؤں گوٹ کے رہنے والے جانور لے کر شہروں میں آتے ہیں، اور جناب اب امیر آدمی، اب جس کو اللہ نے استطاعت دی، وہ پیسے دیتا ہے اور ان کو گویا پورے سال کے لیے اتنی اماؤنٹ مل جاتی ہے کہ پورا سال وہ اپنا گھر چلاتے ہیں، نئے جانور پالتے ہیں۔ تو جناب پہلا فائدہ تو یہ ہو گیا۔ کہاں گئے پیسے؟ غریبوں کے پاس گئے۔ اچھا، لیکن جب وہ جانور کسی منڈی میں آئے تو اس منڈی میں ہزاروں لاکھوں، یوں سمجھے پوری دنیا میں اگر دیکھیں تو لاکھوں شاید مزدوروں کا بھلا شروع ہو جاتا ہے، کوئی چارہ کھلا رہا ہوتا ہے، کوئی لوڈنگ کر رہا ہوتا ہے، کوئی ان کا خیال کر رہا ہوتا ہے، ان کا روزگار شروع ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ خرید کر گھر لاتے ہیں تو سوزوکی والے، ٹرک والے، ان کا روزگار شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، منڈی میں صرف چارے والے نہیں، رسی والے، جانوروں کی خوبصورتی کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی بیچ رہے ہوتے ہیں۔ ہزاروں لوگ آتے ہیں تو وہاں پر باقاعدہ سٹالز لگ جاتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں بکنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کتنے غریبوں کا بھلا ہوتا ہے۔ اچھا، جب وہ جو جانور آپ کے محلے میں، ہماری گھروں کے قریب آ جاتا ہے تو اب گھر کے علاقے میں، بلڈنگ میں چوکیدار اور محلے والے جو لوگ جانور سنبھالتے ہیں ان کا روزگار شروع ہو جاتا ہے۔ سارے تو غریب ہیں۔ اچھا جناب، اور آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد جب قربانی ہوتی ہے تو کون کرتا ہے قربانی؟ ہم خود تو نہیں کاٹتے نا جانور کو، ہزاروں لاکھوں گوشت فروش قصاب
इस्लामी भाइयों का, और एक एक कसाब के साथ 5-5 6-6 हेल्पर होते हैं, उनका ठीक ठाक रोजगार बन जाता है 3 दिनों के अंदर। अब वो कौन लोग होते हैं? वो भी नॉर्मल लोग होते हैं, उनको जबरदस्त रोजगार मिल जाता है। मुसलमानों की जेब से पैसा उनकी जेबों में जा रहा है। अच्छा, अब गोश्त कट गया, कटने के बाद क्या हुआ? सारा हम नहीं खा जाते, लोग अपने रिश्तेदारों में बांटते हैं, बहुत सारे गरीबों में बांटते हैं, तो लाखों लाख गरीबों को गोश्त मिलता है, बल्कि ऐसे लोगों को मिलता है जिन्होंने पूरा साल गोश्त नहीं खाया होता, उन तक गोश्त पहुंच जाता है। और आगे चलिए, अब जब गोश्त उसके कुछ दिनों के बाद ऐसी जगहों पर पकने के लिए जाता है, जो कबाब बनाते हैं, बोटी बनाते हैं, जनाब वो भी नॉर्मल लोग होते हैं, उनका भी रोजगार चल पड़ता है। और आगे चलिए तो इसकी जो खालें होती हैं, ये खालें किसी लेदर फैक्ट्री में जाके बिकती हैं, तो वहां शूज, तो जैकेट वो बनता है, तो उसकी सलाई कढ़ाई मजदूरी करने वाले, यानी अगर फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड देखें तो करोड़ लोगों का बिजनेस चलता है, रोजगार चलता है, मजदूरी मिलती है, गोश्त मिलता है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। गोया सुन्नत इब्राहिमी पर अमल भी हो रहा है, गुनाह भी माफ हो रहे हैं, और पूरे मुमलिकत का, पूरी कंट्री का कारोबार चल रहा है, लाखों लोगों का रोजगार बढ़ रहा है। तो ये जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ना, इस पर तवज्जो ना दिया करें। ये तो मैंने आपको अपने दिमाग से हिकमतें बताई हैं, वरना जिस करीम ने ये काम हम पर हुक्म फरमाया है, हम पर लाजिम शरीयत ने किया है, वो जाने, उसकी हिकमतें जाने। अगर किसी काम की हिकमत समझ ना भी आए, समझ ना भी आए, तो हमारा काम उसकी लॉजिक तलाश करना नहीं। अगर हमें ये पता चल गया कि अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के हबीब का हुक्म है, हमारा काम लब्बैक कहना है, हमारा काम अमल करना। हम बंदे हैं, हमारा काम लब्बैक कहकर काम करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि चलें, फजीलत पर भी बात हो गई, कुछ लॉजिक्स पर भी बात हो गई, और अब आइए, सुभान अल्लाह, अगर ये काम हम दावत इस्लामी के थ्रू करवाते हैं तो ये इतने सारे बेनिफिट्स तो होने ही होने, कुछ और शानदार बेनिफिट्स होंगे। क्योंकि दुनिया भर में जो लोग हमारे आशिकाने रसूल लेते हैं, कई मुल्कों में कुर्बानी करना आसान नहीं होता, फिर उसको संभालना आसान नहीं होता, उसकी सफाई और उसके बाद उसका गोश्त बांटना, तो अब कहाँ कुर्बानी करवाएं? तो सुभान अल्लाह, दावत इस्लामी ने आपके लिए काम बड़ा आसान कर दिया कि हमने इज्तिमाई कुर्बानी, डोनेट कुर्बानी का एक मॉड्यूल मुतारिफ करवाया कि आप दुनिया में कहीं भी हैं, आप घर बैठे, आपकी कुर्बानी हम करेंगे। और कैसे करेंगे? क्योंकि ये शरई काम है, शरई फरीजा है, वाजिब है, तो इसके जो भी शरई कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इसकी जो शरई एहतियातें हैं, मुफ्तियाने किराम से रहनुमाई लेकर, उनसे तरबियत लेकर एक शानदार निज़ाम बनाया कि आपका हिस्सा जो है, आपके नाम की कुर्बानी प्रॉपर टाइमिंग में, प्रॉपर तरीके से और शरीयत की गाइडेंस में हो। और फिर वो कुर्बानी होने के बाद आपकी तो कुर्बानी हो गई, मगर अब दीगर फायदे क्या होंगे कि जो उसका गोश्त है वो आशिकान रसूल के घरों तक पहुंचेगा। और आप यकीन करें, बाज़ औक़ात तो ऐसे लोगों के घरों तक गोश्त पहुंचता है जो शायद पूरा साल बकरा ईद का इंतजार करते हैं कि हमारे घर भी गोश्त आ जाएगा। आप किसी बैरून मुल्क में बैठे हैं, हम तो रोज शायद खाना अच्छा खा लेते हैं, मगर आपकी उस कुर्बानी की बरकत से किसी का 15 दिन या किसी का महीना जो है घर में गोश्त पकता रहेगा, और उसके दिल से आपके लिए दुआएं होंगी। और उसके बाद उसकी जो कुर्बानी की खाल है, वो आपकी मेरी दावत इस्लामी जो दुनिया भर में दीन मतीन की खिदमत कर रही है, उलमा बना रही है, हुफ़ाज बना रही है, मस्जिदें बना रही है, और ना जाने दीन की कितनी सारी चीज़ों पर काम हो रहा है, इंशाअल्लाह हमारा उसमें भी हिस्सा मिल जाएगा। तो देखा जाए तो बेनिफिट ही बेनिफिट है, इंशाअल्लाह नेकियों का खजाना है। तो मेरी गुजारिश ये है कि इस बार आपने अपनी कुर्बानी करनी है दावत इस्लामी के साथ। और हाँ, सिर्फ अपनी कुर्बानी क्यों, अपने रिश्तेदारों से बात कीजिए, अपने दोस्तों से बात कीजिए। इंशाल्लाह मैं अभी कुछ तफसील भी बताता हूँ। मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि हमारे जो इस बार कुर्बानी की रेट लिस्ट है, जो बकरा है पूरा, अगर आप होल गोट करना चाहते हैं तो वो 34,000 है। अच्छा, अब ये तो पाक रुपीज़ में है। अच्छा, लेकिन जो लोग बैरून मुल्क में, तो उनकी आसानी के लिए मैं करेंसी में कुछ रेट्स बता देता हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि पर काउ शेयर इन यूके 65 पाउंड्स, और अगर कोई फुल काउ देना चाहता है तो 455 पाउंड्स है, और अगर कोई हमें एक गोट देना चाहता है तो 105 पाउंड्स हैं। अब 105 पाउंड या 65 पाउंड एक आपका हिस्सा तो हो जाएगा, लेकिन न जाने कितने लोगों तक माशाल्लाह गोश्त पहुंच जाएगा। तो अपनी कुर्बानी इस बार आपने दावत इस्लामी के साथ करनी है। यूएसए की तरफ चले तो $80 है पर काउ में जो आपका हिस्सा है, और एक गोट, एक बकरा जो है $130 है। कनाडा में $100 फॉर पर शेयर काउ में, और गोट के अंदर 165 कैनेडियन डॉलर्स हैं। यूरोप की बात करें तो 70 यूरो एक हिस्सा है गाय के अंदर, और पूरा बकरा जो है फुल गोट 120
यूरोज बनते हैं। बाकी इसी तरह करेंसीज हैं। यूएई में अगर हम बात करें तो 275 दिरहम्स बनते हैं एक हिस्से के, शायद 250 दिरहम में तो यूएई में आप बकरा ढूंढ नहीं सकते या हिस्सा ले नहीं सकते, और अगर बकरा की तरफ चलें तो आपका बनता है 450 दिरहम। तो क्यों ना हमारे मशरिक वुस्ता के लोग हों, मिडल ईस्ट के लोग हों, यूरोप के लोग हों, अफ्रीका के लोग हों, आशिकान रसूल हों, अपनी दावत इस्लामी के साथ इस बार कुर्बानी करें। और हाँ, मैं तो एक और मशवरा भी दूंगा कि अगर आपने सुभान अल्लाह, नबी पाक हमें भूले नहीं थे, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मिना की वादियों में अपनी उम्मत के लिए कुर्बानी की, तो क्या ही अच्छा हो कि जहां मैं अपने लिए कुर्बानी करूं वहां मेरे आका अलैहिस्सलाम के नाम की भी कुर्बानी करूं। और ये प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में इसाले सवाब के लिए होगा। तो हो सके तो पूरी गायें या कम से कम एक पूरा बकरा जो है, हम कहते हैं ना, क्या पेश करें जाना, क्या चीज़ हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। और सुभान अल्लाह, अल्लाह ने और नवाजा है तो अपने सैयदी गौसे आजम के इसाले सवाब के लिए, एक्चुअली नाम पर तो अल्लाह की कुर्बानी होती है, ये दरअसल इसाले सवाब के लिए होती है। फिर आगे चले तो अपने मरहूम वालिदैन के इसाले सवाब के लिए आप कुर्बानी कर सकते हैं, अपने मरहूम रिश्तेदारों के लिए कर सकते हैं। अल्लाह ने नवाजा है तो 4 यारों के लिए भी उनके इसाले सवाब के लिए करें, पंजतन पाक के इसाले सवाब के लिए करें। अब ये देखें ना कि आप उनके इसाले सवाब के लिए कुर्बानी कर रहे हैं और वो गोश्त किसी मुसलमान के घर में भी जा रहा है, तो सुभान अल्लाह, उसकी दुआएं अलग मिल रही हैं, बुजुर्गों का फैजान अलग मिल रहा है। तो अगर मेरी रकम का इन दिनों में इतना बेहतरीन इस्तेमाल, जरा गौर करें ना, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तो अपना बेटा कुर्बान करने का हुक्म दिया गया था, हमसे तो इतना बड़ा इम्तिहान नहीं लिया जा रहा, हमें तो चंद रुपए हैं अल्लाह की राह में खर्च करने हैं। तो बहुत सौ को अल्लाह ने बहुत नवाजा है। तो जनाब, इस बार अपनी कुर्बानी न सिर्फ हमें खुद दावत इस्लामी के साथ करनी है, बल्कि अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को इस बात पर इनकरेज करना है कि दावत इस्लामी वालों के साथ कुर्बानी करें। और इंशाअल्लाह, अच्छा, जो पाकिस्तान से दूर रहते हैं और ख़ास तौर पे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, दे नो वेरी वेल द कंडीशन ऑफ पाकिस्तानीज नाउअडेज, जो यहाँ पर महंगाई का हाल है, जो यहाँ पर लोगों की मुश्किलात का हाल है। आप समझ सकते हैं कि लोग कितनी मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो नॉर्मल और मीडियम क्लास के लोग हैं। तो अब आप सोचें कि उनके घर में गोश्त और कुर्बानी कैसे हो सकेगी इन दिनों में। तो अगर हम उनका दावत इस्लामी के साथ इंशाअल्लाह जब ये कुर्बानी करेंगे तो बहुत सारे आशिकान रसूल के घर में जो है कुर्बानी का गोश्त पहुंच जाएगा। ये याद रहे कि ये हमारी शरई एहतियात है कि हम ये जुमला नहीं कह रहे कि जनाब आपकी कुर्बानी का गोश्त गरीबों में तकसीम होगा। हाँ, मेजॉरिटी गरीब ही होते हैं, लेकिन हमने एहतियातन हमें दारुल इफ्तार नहीं, चूंकि हम ये सारा काम शरई रहनुमाई के साथ ले रहे हैं, तो हमारे दारुल इफ्तार की हमें रहनुमाई है कि जनाब कुर्बानी जो है वो आपने दावत इस्लामी के साथ करनी है और उसका जो गोश्त है वो आशिकान रसूल में, मुसलमानों में तकसीम होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका आपने भरपूर इंशाल्लाह साथ देना है हमारा। जी सही, सब कुछ फरमाना चाहेंगे? एक मैसेज आएगा, और वालिदैन हयात हों तो उनके लिए भी कुर्बानी कर सकते हैं? जी जी, वालिदैन हयात हों और तो फिर तो उनके नाम की कुर्बानी बिल्कुल होनी चाहिए, और अगर वो साहिब इस्तिताअत हैं तो उन पर तो वाजिब हो जाएगी कुर्बानी। लेकिन अच्छी बात है कि घर में अगर कोई शख्स है और अपने घर के बड़ों के लिए भी कुर्बानी करना चाहता है, बच्चों के लिए भी करना चाहता है, तो बेहतर ये है कि जिसके बालिग के नाम की कुर्बानी वो कर रहा है उनको एतमाद में ले ले कि इस बार आपकी कुर्बानी मेरी तरफ से मैं कर रहा हूँ। उनकी इजाज़त हो जाएगी तो फिर उनकी कुर्बानी भी हो जाएगी। ऐसा ना हो कि उन्हें पता ही नहीं है और आप उनकी कुर्बानी कर रहे हैं, तो फिर उनको अपनी कुर्बानी भी अलग से करनी होगी। और अगर वालिदैन दुनिया से चले गए हैं तो उनके लिए भी ईसाले सवाब के लिए कुर्बानी की जा सकती है। इंशाल्लाह उनको कब्र में सवाब का तोहफा मिलेगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह, पाकिस्तान में तो दावत इस्लामी कुर्बानी की खाले भी जमा करती है और ये बहुत बड़ी नेकी है कि अच्छा बाज़ औक़ात हम थोड़ी सी तवज्जो देते ना तो हमारे आस पड़ोस में, हमारे ख़ानदान में बहुत सारी कुर्बानियाँ हो रही होती हैं। हमें सिर्फ कहना होता है कि ये कुर्बानी की खाल दावत इस्लामी को दे दें, क्योंकि दावत इस्लामी का तारुफ करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पूरी दुनिया दावत इस्लामी को जानती है, पाकिस्तान वाले तो ज़्यादा जानते हैं। तो अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें और हमारी कुछ ज़बान चलाने से, थोड़ी सी कोशिश करने से 25, 50, 100 खाले हो जाएं और उसके ज़रिए माशाल्लाह एक अच्छी अमाउंट दावत इस्लामी तक पहुँच जाएगी, तो ये हमारे लिए अल्लाह ने चाहा सदका जारिया बन सकता है। बल्कि एक और चीज़ भी हो सकती है सही साहब, जो लोग पाकिस्तान में नहीं हैं, उनके रिश्तेदार पाकिस्तान में हैं। अच्छा, आपने वहाँ से यूरोप से, यूके से, अरब इमारात से या अफ्रीका से कुछ कुर्बानी के हिस्से तो भिजवा दिए, मगर ये भी तो हो सकता है कि आप अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करें, मैसेज करें कि भाई इस बार कुर्बानी की खाल आपने दावत इस्लामी को देनी है। आपने सिंपल ये करना है, उनसे एग्री करवा कर वो मान जाएं तो उनका फ़ोन नंबर और एड्रेस आप हमारे फैज़ान ऑनलाइन अकेडमी का जो हेल्पलाइन नंबर है वहाँ दे दें। वहाँ इंशाल्लाह हमारी टीम खुद उनसे राब्ता करेगी और इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल उनसे जाकर हम वो उनकी कुर्बानी की खाले भी कलेक्ट कर लेंगे और उसका सवाब भी आपको मिल जाएगा। अच्छा, आप बैठे बाहर होंगे और कुर्बानी की खालें यहाँ जमा हो रही होंगी। मुझे अच्छी तरह याद है, कुछ जिम्मेदारान जो हैं वो जब हज पे जाते हैं और उनका बड़ा शौक होता है कुर्बानी की खालों का, तो वो वहाँ से भी मैसेजेस कर रहे होते हैं, वहाँ से भी कॉल कर रहे होते हैं कि भाई आपकी कुर्बानी की खाल। अच्छा, वो उनको नहीं पता होता, वो बाहर है, तो यहाँ वाला जिसकी घर की कुर्बानी हो जाती है वो उनको मैसेज करता है, भाई
मेरी खाल रेडी है, तो वो मक्का पाक से ज़िम्मेदार को कहता है जल्दी उस घर पे जाओ, जाके खाल उठा लो। तो ये जज्बा है ना, कि ये जज्बा ये है कि जनाब मैं सफ़र पर भी हूँ तो मेरा सवाब कम नहीं होना चाहिए। जिस तरह लोग बैरून मुल्क में रहकर अपना कारोबार चला रहे होते हैं, तो ये नेकियों का कारोबार भी चलाइए ना। तो इस बार इंशाल्लाह 2 in 1 हमने काम करना है, यानी 3 in 1 हो गया। अपनी कुर्बानी दावत इस्लामी के साथ करनी है, अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को तरगीब दिलाकर उनकी कुर्बानी भी करवानी है, और तीसरे नंबर पर इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल हमें इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल और आशिकान रसूल की कुर्बानी की खाले भी जमा करनी है इंशाअल्लाह। जी सैयद, इसमें कुछ यूँ भी आ डिटेल कि भाई इस वक्त कितने मदारिस चल रहे हैं और जो हम कुर्बानी की खाले या डोनेट कुर्बानी करते हैं, दावत इस्लामी को इससे क्या फ़ायदा पहुँचे? जी, जैसे मैंने बताया कि आपकी डोनेट कुर्बानी का गोश्त तो आशिकान रसूल तक पहुँचेगा, उसमें कई उलमा होंगे, कई हाफिज़ होंगे, कई नॉर्मल आशिकान रसूल होंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो कुर्बानी की खालें हैं वो दावत इस्लामी के फंड में जाएंगी। अब दावत इस्लामी तो सवाब की फैक्ट्री है ना, तकरीबन 6,500 से ज़्यादा तो हमारे मदरसतुल मदीना है, जिसमें लाखों बच्चे, मोर देन 3 लाख के करीब बच्चे और बच्चियाँ बगैर फीस के कुरान पाक पढ़ रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा तो हाफिज कुरान बन चुके हैं। फिर उलमा की तरफ चलें तो 1300 से ज्यादा जामियतुल मदीना है, 1 लाख से ज्यादा बच्चे और बच्चियां उसमें इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें दरस निज़ामी कर रहे हैं, हजारों उलमा बन चुके हैं। तो मेरी कुर्बानी की खाल से अगर कोई एक आलिम बन गया, हाफिज बन गया, दीन का मुबल्लिग बन गया और उसने जाकर दुनिया में गैर मुस्लिमों को मुसलमान करना शुरू कर दिया, तो आप इमेजिन तो करें कि ये सवाब का कैसा कंटिन्यू मीटर है। तो कुर्बानी की खाल तो हमें दावत इस्लामी को देनी ही देनी है। इंशाअल्लाह डोनेट कुर्बानी भी अपनी दावत इस्लामी के थ्रू करवानी है इंशाअल्लाह। आगे हमने ये तरगीब दिलानी है, तो किस तरह हम जहन बनाएं अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का, और अगर वो ये जहन अगर वो आगे किसी को देते तो सवाब कितना मिलेगा? जी बिल्कुल, कोशिश करें कि दूसरों को प्रमोट करें, क्योंकि इसमें हम में से किसी का भी ज़ाती फ़ायदा नहीं है। यानी हम अपने बिजनेस के लिए आपसे बात नहीं कर रहे, इसका मकसद कुरान और सुन्नत को घर घर पहुँचाना है, इल्म दीन को पहुँचाना है। तो इसको प्रमोट करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्ब करीम, हम सब का जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। दुनिया भर में जहाँ जहाँ तेरे बंदे, तेरी बंदियाँ हमारे साथ हाथ उठाकर हाजिर हैं, ए अल्लाह सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा, हम सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमा, हम सब की मुश्किलों को आसान फरमा। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम लना बिल खैर या फत्ताहु व बिका नस्तईन। ए शिफा देने वाले, हमारे सारे मरीज़ों को शिफा अता फरमा। या रब्बल आलमीन, तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा, बेरोज़गारों को रिज़्क़ हलाल अता फरमा, तंग दस्तों को फर्राख दस्ती अता फरमा। ए अल्लाह, बे औलादों को नेक और सालेह औलाद अता फरमा, जिनको औलाद दी है उनकी औलाद को माँ बाप की आँखों का नूर बना दे। ए रब्ब करीम, हमें इल्म नाफ़े अता फरमा, आलिम बाअमल बना दे। हम में से जो हज को जा रहे हैं, जा चुके, उनके हज को कबूल फरमा, जो तड़प रहे हैं उन्हें भी मक्के मदीने की हाज़िरी अता फरमा। ए अल्लाह, सबकी कुर्बानियाँ कबूल फरमा। हम दावत इस्लामी के लिए जो कुर्बानी के लिए कोशिश करें, अल्लाह उनकी कोशिशों को भी अपने दरबार में कबूल फरमा। ए परवरदिगार, कई इस्लामी भाइयों ने, इस्लामी बहनों ने मैसेज के ज़रिए दुआओं के लिए कहा, तो सबके नाम भी जानता है और काम भी जानता है। अल्लाह सबकी झोलियाँ भर दे। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन बरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, सामने हो रोज़े रसूलुल्लाह और लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।